We provide IVF, we provide laparoscopic gynae surgery, the obstetric services. After that comes the cardiac department. पता नहीं शक्ल पे लिखा है आप डिस्काउंट चाहिए था। मैं भैया खेल मुझ बीची। So हमारे बीच में डॉक्टर सचिन मल्होत्रा है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? I'm good, Varsha. और मिशन एंड विजन हम दोनों आज जानेंगे कि आपने किस मिशन के साथ इस विजन को स्टार्ट किया। Once you enter into the practice, it is only 70% of the villagers who come to the doctor because India is a country where 70% people stay in the villages. पैसा नहीं है तो भी इलाज करना है, बस एक ये मोटो रख लो, चीजें अपने आप ठीक होती हैं, भगवान आप मदद करें। हेलो गाइस, मैं वर्षा आनंद आगरा से। आज हम आए हैं ब्लॉसम्स हॉस्पिटल और आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर सचिन मल्होत्रा से, जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, और हम जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में और उनके मिशन एंड विजन के बारे में। आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर सचिन मल्होत्रा है। हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू? आई एम गुड, वर्षा। डॉक्टर, मैं जानना चाहती हूँ हमारा हॉस्पिटल को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा जर्नी था उसके लिए, और मिशन एंड विजन हम दोनों आज जानेंगे कि आपने किस मिशन के साथ इस विजन को स्टार्ट किया। See, I mean, I completed my anesthesia in fact in 2007, and after 2007 I started working with the GTB in Delhi at Dilshad Garden. From there I came back in 2008, it seems, as far as I remember. In 2009 I started my own clinic sort of thing in the garage, which my dad has given me to open up the clinic. So from there my journey started as a hospital owner or a businessman, and I started the journey, and with a couple of years I suppose many people got attached with me from villages also, from the roots of even slum areas, and there are many other people who were under treatment of mine and they got benefit out of it. So that type of thing happened. It was a chain system. Once the one patient went out of my clinic after getting recovered, so they really propagated this thing that I am doing good. So by the word of mouth, I got a good publicity, and slowly, eventually, people got attached to me, and slowly the clinic developed into the nursing home, and nursing home developed into the hospital. And now we are having around 45 bedded hospital, Blossoms Hospital, and 45 bedded Malhotra Hospital. So approximately 90 beds are there with me right now. And I am the person who is a co-founder along with my wife for these two hospitals. And the journey was very smooth. I never had such breakers in between. Of course, you always have a struggle in the initial phase once you are not having finances. Because as of now, I started my journey from zero, because I was not having that much funds in the beginning, because my dad was a small businessman and he was not a skilled professional, so that he can lend me some money to start up my own clinic. He just had given me the money for studies, and I got the professional course done, MBBS and further MD, and then I started my own journey. And with time, slowly, as time passed, so I started earning also from the patients, and some of the patients के साथ I have to go with the flexible plans. You can call flexi plans if suppose the people are doing some amount, like X amount, the person is getting cured. Because I was a newcomer, so I got that patient to my setup, and I got that patient cured at X by 2 rate. So that was the thing which really had motivated my patients to come to me, and that thing had motivated me also, because of which I was not running after money, I was running after my fame and name. But with time, with fame and name, you always have some proportion of money also. So with time it happened, and today I also give that flexibility to my patients still. It's not like X amount of the money is being charged for the treatment. We can go with a definitely flexi plan, like X by 2, sometimes X by 3, sometimes as per the pocket of the patient allows. So we do cater, and the vision and the mission was I started my journey कि I'm gonna get a good patients. As of now, once you enter into this extreme of medical line, you always have that blues in your mind that once you will come out and you will capture the patients, and they are going to be very good patients. They will going to speak with you in a very polite way, in English, in Hindi, and like that. But this doesn't happen actually. Once you enter into the practice, it is only 70% of the villagers who come to the doctor, because India is a country where 70% people stay in the villages.
itte aao, utte aao type of things which I learned from here. And these few words I really never had experience because my background I was a Canadian. I did my schooling from ICSE board. So these few words were there which was really new to me, and then I started learning that language of village people, and I started interacting with their language with them. It was like somehow utterly buttily types, but I started that. So they also recognized me. Dr. Saab is trying to communicate with them in their language, and I'm trying to get the complaints what patients are telling me. So that was the reason that I'm gonna get good clientele and all that, but it happened. It actually never happened. 70% are villagers, and I really find them very good at heart. Of course, they have less money, but the heart is too big. I don't find there is nothing like people who stay in the villages are the best people in the world. They never do such type of things, crazy type of things. The doctor has charged over, the doctor had, they don't have hearts and such type of things. The bullies, which I think the urban people used to give to doctors, they never give. In fact, they really stand with you and they take they praise you always once they get cured and treated. But as of now, with time, I got the urban clientage also. The urban clientage, I find it is also good, but I'm more satisfied with my rural clientage. I am very happy with them. Of course, urban clientage is like my wife is dealing with them, and they're very much satisfied with them. And now it's a mixed type of clientage I'm having, rural and urban both. So they both are satisfied, and this is the only mission I really want to satisfy my clients, my patients. That is the only mission in my mind. It's not about money. Sometimes you have to leave the money also. I used to get few of the cataract surgeries in winters from Vridhashram. I don't want this to be propagated everywhere. But this is my cause. This is like from inner I feel like that these people are like they are homeless people, and people have left them out from the society. They're not in the society even. So some of the cases like cataract, hernia, small appendix, I used to deliver free of cost to them, and some of the poor socio-economic status. So I find these type of services should also be done, but they should not ever propagate it. दान बता के नहीं होता है, तो ठीक है. It happened. आपसे बात करते करते निकल गई, but ये निकलना भी नहीं चाहिए. Anyway, but and one more thing, you have to be very friendly with the staff. Once you want to be a successful man, no, you have to be very friendly with the staff. If you will like Hitler with the staff, you cannot run your setup. You cannot run your business. You have to be very, very, like familiar with the staff. You have to be their family head. Then only the things will work out. Else no. That's it. जैसा आपने बोला, आप अपने पेशेंट्स के साथ बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, राइट? Yeah. सो मैं जानना चाहूँगी वो पेशेंट्स आपके अंदर कैसे आया, लाइक क्या आप बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं? मैं बहुत डॉक्टर से मिलती हूँ, उनके पास इवन टाइम बहुत शॉर्ट रहता है. और सबसे बड़ी बात करें हम मनी के लिए, तो एज यू सेड कि आप जो फिक्स प्राइस है, कभी भी आप पेशेंट्स हमेशा लेस करने के लिए बात करते हैं, डॉक्टर थोड़ा कम कर लीजिए, बट फिर भी आप हमेशा अपने पेशेंट्स के साथ फ्लेक्सिबल रहते हैं. वो पेशेंट्स आपके अंदर कैसे आया? और जब इस पोस्ट में रहकर मैं 95% डॉक्टर्स के साथ बात करती हूँ, तो पेशेंट्स मुझे नहीं दिखता. और वो फ्लेक्सिबिलिटी हम हॉस्पिटल्स में जाके बात करें तो हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं मिलती. तो उसके बिहाइंड रीजन जान सकते हैं? देखो, अब I belong to very low socio-economic status since beginning, so I never had that greed for the money. ठीक है, जितना है उतने में हमारे घर चल जाता है. हमारी फैमिली, जो हमारे स्टाफ की फैमिली, उनके घर चल जाते हैं. दैट्स एनफ फॉर मी. एंड अल्टीमेटली 100 रुपये में खाना हो जाता है पूरे दिन का. उसके ऊपर तो सब बेकार ही है. तो आई फाइंड दिस थिंग फ्रॉम, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरे को ऐसा कोई, आई एम नॉट इन द रेस ऑफ 99. जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, इट्स फाइन. एंड द कंसर्न अबाउट योर पेशेंट, मेरे को लगता नहीं यार, मेरे को आज तक किसी पेशेंट ने अगर 100 रुपये का भेजे पूरा 100 रुपये दिया हो. वो कभी 99 दे गया होगा, कभी 95 दे गया होगा, कभी 80, कभी 85, कभी 75. पता नहीं, शक्ल पे लिखा है यार डिस्काउंट चाहिए था. इट्स ओके. कभी कभी तो ये भी होता भाई, डॉक्टर साहब पैसे ना आए, गाँव में जाएंगे, खेत बेचेंगे, तब आएंगे. मैं भैया खेत मत बेची हूँ क्या, 4 पेशेंट बेचती हूँ. तो दिस इज द वे आई यूज्ड टू टॉक टू देम एंड कम्युनिकेट माय मैसेज कि तू जा रहा है गाँव, तो 4 पेशेंट भेज देना. दैट इज इक्वली गुड यार. अगर मान लो 10 रुपये का, पहले तो 5 रुपये दे रहा, 4 पेशेंट भेजेगा तो वो मुझे पे करके जाएगा. दैट्स फाइन. सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. बट आई एम अ प्रोफेशनल मैन. कोई मैं अपना परचेज तो नहीं कर रहा हूँ ना यार. इट्स माई माइंड ओनली विच आई, जिसका लोग मोल लगा रहे,
कोई 1 रुपये में ले ले, कोई 100 रुपये में ले ले, कुछ तो लेके जा रहे हैं। That's fine. I don't have any problem in that. कोई मैं मोबाइल का दुकान थोड़ी चला रहा हूँ, ये मैंने 100 रुपये का लिया है, मुझे 100 का बेचना है, तो it's fine. I don't find this is bad. This is good. In fact, जरूरी नहीं है आपको अपना ब्रेन को 1 रुपये का 100 रुपये का ये कोई रेट लगा दिया आपने इतने में बेचना है, जिसके पास जितना उतने में ले लो, चलेगा। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूबल लाइक व्यूज के लिए और जो आपने माइंड में रखा है, क्योंकि कई बार हम लोग इन चीज़ों की भी प्राइस वैल्यूज लगा देते हैं और इससे कम हम लेंगे ही नहीं। आपको हमारे हॉस्पिटल में आना है तो आप आइए, नहीं तो नहीं। बट हमारे आगरा में डॉक्टर सचिन मल्होत्रा, अभी आपने उनकी ही टेस्टिमनी को सुना कि उन्होंने कैसे इस हॉस्पिटल के लिए स्टार्टअप किया और कैसा उनका माइंडसेट है। सो मैं और क्वेरीज उनसे करूंगी। मैं जान सकती हूँ हम कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं? Actually, we are into more or less IVF. Gynae services में we are number one in Agra. We provide IVF, we provide laparoscopic gynae surgery, the obstetric services. After that comes the cardiac department, where we have cath lab, we have in-house cardiologist. Number 3 comes intensive care, which I am looking after. Of course, it is like we are running 20-bed setup with completely equipped ventilators, around 12 ventilators we are having in our setup. We have a dialysis unit in-house where patients who are having kidney failure do undergo dialysis. We have pediatric unit in-house like an ICU, neonatal ICU, neonatal ventilators, neonatal incubators. We are almost having almost all the specialties, laparoscopic surgeries we are into, and more or less minimal invasive surgery nowadays. So I believe almost all departments are there in our hospital, and you can come up anytime and can avail the services from our center. We are running all the shows right from 9 a.m. to next day 9 a.m. like 24 hours. Thank you. थैंक यू। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन। सो मैं जान सकती हूँ हमारा जो स्टाफ है उसका रिव्यू मैं आपसे जान सकती हूँ कि वो कैसा रिव्यू है, और हम हमारे स्टाफ को मतलब लाइक कैसे ट्रीट करते हैं आपके द्वारा और आपके मैनेजर्स के द्वारा, कैसे स्टाफ को ट्रीट किया जाता है। क्योंकि जैसा हम स्टाफ को ट्रीट करते हैं, इवन एज यू सेड कि स्टाफ के साथ अगर हम पोलाइट रहेंगे, सो फ्रेंकली रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हम बिजनेस में अच्छा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और स्टाफ अगर खुश है तो ऑब्वियसली हमारा पूरा बिजनेस अच्छा रहेगा। सो मैंने जैसा देखा आपका स्टाफ बहुत पोलाइट है, इवन हम विजिट जब भी करते हैं वो वेरी पोलाइट रहता है। सो मैं आपसे रिव्यू जानना चाहती हूँ। Yeah, we do take our staff as a family. They never considered as a boss. They never take me as a boss. शुरू से बॉस वाला फील ही नहीं दिया उन्होंने यार, आज तक देना ही चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं दिया ना। हिटलर वाला दिया यार, लगता ही नहीं बॉस, लगता है यार फैमिली टाइप का चल रहा है सिस्टम। किसी को एडवांस चाहिए ना भाई, सर मेरे को एडवांस चाहिए, ठीक है ले लेगा। इट्स लाइक दैट, वो हम लोग का एक प्यार है। खाना भी हम लोग कभी भी स्टाफ खा रहा होता है तो मैं वैक्यूम के बीच में चला जाता हूँ खाना खाने, बिकॉज आई एम डायबिटिक, तो घर पे मिठाई मिलता नहीं, इन लोग को भी मिठाई नहीं खा लेते हैं। तो these are few things, like with couple of years आपका प्यार डेवलप होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि यू आर रिलेटेड विद ब्लड टू सम ऑफ द रिलेशंस। ब्लड के बिना भी ना, मतलब ब्लड रिलेटेड रिश्ते तो कई बार कमाल भी हो जाते हैं, मतलब गायब भी हो जाते हैं, लेकिन बिना ब्लड के जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो जाते हैं। मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स दैन द ब्लड रिलेटेड बॉन्ड्स, एज फार एज आई फील, एंड आई रियली हैव अ वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद देम। भगवान ना करे कोई दिक्कत होती है ना, दीज पीपल आर ऑलवेज स्टैंडिंग विद मी। मतलब मेरा कभी किसी से कोई भी बात भी होता है ना, एक साथ सब आ जाते हैं। दे नेवर लेट मी फाइट अलोन, दे नेवर लेट मी गो अलोन। अगर मुझे कहीं पे जाना है, देन ऑलवेज वन ऑफ द स्टाफ इन द कंपनी सब मैं साथ हैं। ठीक है, दैट्स फाइन यार, दिस इज द ओनली रिस्पेक्ट व्हिच आई गेव इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स, एंड आई एम रियली हैप्पी इन दैट फॉर दिस। थैंक यू। सो वन मोर क्वेश्चन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कुछ ऐसे केस जो आपने बहुत डिफिकल्ट रहे हो और लाइक ऐसा हो कि हम सोच रहे हैं हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट फिर भी आपने उनको सक्सेसफुली किया। देखो यार, मेरे सामने एक लड़की बैठी है वर्षा, शी इज सच एग्जांपल। शी वाज बीन आई सपोज सब लोगों ने मना किया था, शी वाज हैविंग वेरी लो प्लेटेड काउंट्स, एंड शी somehow entered to my hospital. We treated her, and by the grace of God she is still there, and प्लेटेड काउंट भी ठीक ठाक है इसका। कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो मेरे पास, दे कम फ्रॉम सम अदर हॉस्पिटल, लाइक दे आर ऑन वेंटिलेटर, वहाँ पे जवाब दे देते हैं या कहीं और जवाब दे देते हैं, तो फिर हम लोग भी द केयर टेकर, टर्शरी केयर सेंटर है हमारा, एंड आई एम इनटू क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थेटिक, सो आई एम द लाइफ सेवर एट दैट टाइम। आई पुट देम ऑन वेंटिलेटर, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई सपोज इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ 100 पेशेंट्स, आउट ऑफ देम 70 कम आउट ऑफ द वेंटिलेटर, दे गेट वीन ऑफ, एंड फर्दर विद
time they recover well, and these type of patients they always praise you a lot, of course, because time period बहुत बड़ा होता है इनको ठीक होने में, पैसों का फाइनेंसिस का प्रॉब्लम आता है, बट कहीं ना कहीं मैंने बताया फ्लैक्सी प्लान्स रहते हैं हम लोग के, तो हम लोग को मैनेज करना पड़ता है, कभी नहीं भी दे पाता तो भी यार आप आधे रास्ते में पेशेंट को थोड़ी छोड़ दोगे कि नहीं अभी ठीक नहीं हो रहा, वेंटिलेटर में है, पैसा नहीं है तो भी इलाज करना है, बस एक ही मोटो रख लो, चीज़ें अपने आप ठीक होती हैं, भगवान आप मदद करें। जहाँ आपने सोचा यार ये 4 दिन हो गया वेंटिलेटर पे पैसा नहीं है, जमा नहीं कर रहा यार, क्या करो यार, और अभी इसको आगे 4 दिन वेंटिलेटर पे करना है, प्रॉब्लम क्या है यार, मशीन तो आई हुई है ना, थोड़ा ऑक्सीजन भी तो लग रहा है, दिक्कत क्या है, जब 10 लोगों के लिए पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, एक के लिए और चल जाएगा, देन इट्स लाइक इफ यू विल थिंक दैट वे ना, यू कैन गो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस एंड द रिजल्ट्स डू कम, दैट इज द ओनली थिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। सो जैसा डॉक्टर ने बोला, मैं उनकी एक पेशेंट रही हूँ और मेरे को आगरा में सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, मेरा प्लेटलेट्स काउंट जो था वो सिर्फ 10,000 था, और 10,000 पे से बहुत से लोग बच भी जाते हैं, बट मेरा जो कंडीशन था वो बहुत क्रिटिकल था, इवन मेरे को मुँह से ब्लड आ रहा था, नाक से भी ब्लड आ रहा था, मेरे पूरे बॉडी पे खून के क्लॉटिंग्स हो गए थे, मतलब सर से लेकर पैर तक पूरा क्लॉटिंग था, बट सारे डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया। यहाँ आगरा में मैंने हमारी फैमिली में हमने सर्च किया कि कोई ऐसा बेस्ट डॉक्टर है आगरा में जो मुझे एडमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ आई और यहाँ पे मुझे एंटर किया और मेरा एडमिशन किया यहाँ पे, और मैं थैंक यू बोलती हूँ डॉक्टर सचिन को कि उन्होंने मुझे यहाँ एडमिट किया, और उसके बाद मैं बहुत 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ डॉक्टर सचिन मल्होत्रा फॉर मी वर्ल्ड बेस्ट डॉक्टर है, बिकॉज मेरे फैमिली को कोई उम्मीद नहीं था, इवन मुझे कोई उम्मीद नहीं था। जब जिस नाइट को मैं एडमिट हुई थी, मैंने मेरी मदर को पेशेंट बेड पे, जिस बेड पे मैं एडमिट थी, मैंने मेरी मदर को उसी बेड पे अपने साथ सुलाया था। आई वॉज थिंकिंग लाइक कि कल की सुबह मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि शायद मैं बचूंगी ही नहीं, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, प्लेटलेट्स काउंट सेकंड्स में बहुत डाउन होता जा रहा था, मतलब कहाँ 1.5 लाख था, 1.5 लाख से 75,000, 34,000, 12,000, देन 10,000। पर मैं धन्यवाद करती हूँ, नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा 75 प्लेटलेट्स काउंट गया, और मैं जब डॉक्टर आए तो मैंने उनको बोला डॉक्टर देखा मैं इंक्रीज कर रही हूँ। सो ये बहुत ट्रू है कि डॉक्टर बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, सिर्फ फ्लेक्सिबल ही नहीं रहते, अपने पेशेंट्स की बहुत पेशेंसफुली बातों को सुनते हैं और उनको बहुत फैमिलियर ट्रीटमेंट देते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं आज तक इनके साथ टच में हूँ, रीजन क्या, जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रही थी तो उन्होंने बोला कि आप मेरे पेशेंट्स के लिए प्रेयर करना, जितने भी पेशेंट्स हैं मैं चाहता हूँ मेरे यहाँ से हर एक पेशेंट रिकवर होकर जाए। शायद ऐसे बहुत ही लेस थिंकिंग वाले आपको डॉक्टर्स मिलेंगे जो ये प्रेयर कर रहे हैं कि मेरे पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जाए। सो वो जो माइंडसेट था मेरे को इतना टच किया कि स्टिल मैं 2022 में यहाँ पर आई थी, और 24 मतलब 2 इयर्स कंटिन्यू मैं डॉक्टर के साथ टच में रही, और मैं अभी डॉक्टर को डॉक्टर अंकल बोलती हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अंकल। Thank you so much, Varsha.